Welcome back, viewers. You're watching The Savera and I am Vidhi Joshi. The Moradabad police have successfully recovered 300 grams of gold from the stomachs of 4 youths who were rescued from kidnappers in Uttar Pradesh. The youths, all residents of Tanda Badli in Rampur district, had been working in Saudi Arabia and were returning home where they were abducted. According to SP City Kumar Ranvijay Singh, the kidnappers had received a tip-off about the gold hidden in the stomachs of the youths and had planned to retrieve it. The police rescued the youth and arrested 2 kidnappers, while 4 others managed to escape. After conducting an ultrasound, the police found that 4 of the youths, Alam, Mutalavi, Azharuddin and Zulfikar, had gold capsules in their stomach. The police fed them food and laxatives, and 9 gold capsules weighing 25 grams each were recovered. However, doctors believe that there are still a large number of gold capsules present in their stomachs and efforts are being made to recover them through enema. A case of gold smuggling has been registered against the youths and they are currently admitted to the district hospital under police surveillance. The Customs Department has also been informed about the case. The incident occurred when the youths landed at the Delhi airport and were travelling to their home in Rampur in a taxi. They were stopped by a fake official at the Old Toil Plaza on the Moradabad-Lucknow highway, who kidnapped them at gunpoint and took them to a farmhouse on Ronda Road. The kidnappers suspected that the youths had brought gold capsules from Saudi Arabia hidden in their stomachs and demanded that they hand over the gold. However, when they were unable to recover any gold, they threatened to rip open their stomachs. One of the youths managed to escape and raised an alarm, which led to the police intervention. The police caught 2 kidnappers in an encounter, but 4 others managed to escape. The 2 arrested kidnappers are currently undergoing treatment for injuries sustained during the encounter. The police are now searching for the remaining 4 kidnappers and investigating the gold smuggling racket. Now let's listen to what the officer has to say. देखिए 23 तारीख को एक किडनैपिंग की सूचना पे कार्रवाई करते हुए एसएचओ मुडा पांडे ने 2 किडनैपर्स को पुलिस इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था और उन लोगों से पूछताछ की गई थी। उन लोगों ने बताया कि जो किडनैपिंग उन लोगों ने की थी, बेसिकली जो लोग कुछ लोग दुबई से आ रहे थे, वो उन लोगों ने अपने स्टमक में कुछ गोल्ड के कैप्सूल्स कंसील किए हुए हैं और उसी को लेने के लिए हम लोगों ने इनकी किडनैपिंग की थी। बेसिकली जो इनकाउंटर हुआ था उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह की कार्रवाई की गई। जो लोग किडनैप थे, जो 6 लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी, उन लोगों का भी मेडिकल हम लोगों ने कराया और ये जो हम लोगों को बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ इस तरह के मेटल्स हो सकते हैं, हम लोगों ने इनकी एक्सरे स्कैनिंग कराई। उस 6 लोगों में से 4 लोगों के बॉडी, इनसाइड बॉडी इस तरह के मेटल्स दिखे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कुछ फॉरेन मेटल्स हैं इसमें और ये इसको निकलने के बाद ही पता चल पाएगा। फिर हम लोगों ने तत्काल उनको मेडिकल सुपरविजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हमारी फोरेंसिक की टीम भी आ गई और वहां पर हम लोगों ने वॉलंटरीली इजेक्ट कराया। उसमें से 4 लोगों ने 27 कैप्सूल्स अब तक निकाल करके दिए हैं और इसको हम लोगों ने टेस्ट कराया और इसकी सर्टिफिकेशन भी कराई गई। ये गोल्ड थे और बहुत ही प्योर गोल्ड था। इसमें 27 कैप्सूल्स की का वेट 1.058 ग्राम्स यानी लगभग 1 किलो सोना था। ये इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है और उसको हम लोगों ने पूरी प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों ने किया। उसमें अभी इन 4 के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन 4 को जेल भेज रहे हैं। इसमें एक के पास अभी भी 2 कैप्सूल्स इसके बॉडी में हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। जो हमारे स्कैनिंग में आया है उसको हम लोग स्टडी में लेकर के उसके बाद फिर उसको निकलवाने का प्रयास करेंगे। और इसमें बेसिकली इन लोगों से बातचीत करने पर ऐसा पता चला कि बहुत बड़ा गैंग है। इसमें कुछ फाइनेंसर्स भी हैं। ये लोग कंटिन्यूअसली वहाँ सऊदीया और इधर दुबई की तरफ जाते हैं और वहाँ से इसी तरीके से इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत वहाँ से गोल्ड लेकर के आते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं, कुछ गोल्ड के कारोबारी भी शामिल हैं, कुछ ट्रेवल एजेंट्स भी शामिल हैं। हम लोग के पास सारी सूचनाएं अभी आ गई हैं। फिलहाल हम लोग अभियोग पंजीकृत करके इसमें बीएनएस और कस्टम्स की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इनको जेल भेज रहे हैं और उसके बाद इसमें बाकी जो इनपुट्स हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जो इनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कई वर्षों से ये वहां जा रहे हैं और इसी तरीके से कुछ न कुछ, चूंकि इनका ट्रैवल वीजा है
और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं। एक बार जब ये जाते हैं तो कम से कम 6 से 8 दिन तक इनका पूरा एक ट्रेवल होता है यहाँ से, घर से लेकर के और वापस घर आने तक। और ये लगातार उस तरह से फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। तो बेसिकली इससे डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि लोग इसी चीज के लिए जाते हैं और काफी दिनों से जा रहे हैं। इन लोगों के पोजीशन से कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। इनका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो भी सस्पिशियस है, उसको भी हम हायर लेवल से जांच करा रहे हैं उसकी। और बाकी जो आई कार्ड मिले उसके हिसाब से हम लोगों ने धाराएं भी लगाई। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.